In the part 2 of the interference, first of all, in part 1, we have got this IR is equal to IA plus IB plus 2 under root IA IB cos phi. That's a very important equation. And here this is the interference factor. In a special cases also we have discussed if A is equal to B, means the amplitude of the first wave is equal to the amplitude of the second wave, and let it be A is equal to B is equal to A. So put this value R max, we know A plus B, so in place of B we are writing A, so it is 2A R max. Now intensity, if the amplitudes are same, intensity is also same. IA is equal to IB is equal to, say, I naught. Both are equal, I naught. Then put this value in this equation. So IR maximum intensity, I naught plus I naught square, I naught square under root, that is equal to I naught. This plus is 2 I naught plus 2 under root this is your I naught, and cos phi means phi is your 0, so this is 1, so ultimately 4 I naught, that is IR max, maximum intensity, that we have discussed, right? And in case of minimum, this is the number 1 that we have discussed in the video of the part 1, and the minimum intensity IR minimum, in that case we got 0, that we have discussed, right? Now come on to the part 2 of this, variation of phase with brightness. Just to see the sheet, variation of phase with brightness. Now here it comes to be that particular equation, this, if IA is equal to IB is equal to I naught, then IR is equal to how much? I naught plus 2 I naught cos phi. Then if the intensities are same, then say this 2 I naught here, 2 I naught, take out the common, so 1 plus cos phi, 2 I naught into 2 cos square phi by 2. How it comes? The formula 1 plus cos phi cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1, so 1 cancel, so ultimately 1 plus cos phi is equal to 2 cos square phi by 2. So ultimately it is IR is equal to 4 I naught cos square phi by 2. That's also important relation. If the intensities, this particular formula is that if the intensities are same of individual IA and IB, then resultant intensity in case of constructive interference is equal to IR is equal to 4 I naught cos square phi by 2. Right. Next part is that that we know, we have discussed constructive interference and the destructive interference, that we know in terms of phase difference, phi is equal to plus minus n 2 pi, and this is your destructive, this much 2n plus 1 pi. If we are going to draw the graph between phi and I, then you will get the graph like that. And here this particular part represents the 4 times of the I naught. In this particular case, 4 times of the intensity of the either wave. This graph is also important. Another part of the interference is that we know I max, we have discussed in the part 1 of the video, under root IA plus under root IB whole square, I max, and I min under root IA minus under root IB whole square, right? And this under root IA is equal to A. We know how under root IA is equal to A. We know intensity is directly proportional to the square of the amplitude. So A is equal to, if we are taking the constant here, A is equal to under root IA
k is a constant, proportionality constant, which is going to cancel out. So we are not taking it under root. So a is equal to under root ia. So under root ia, under root ib, b. Under root ia minus under root ib, this one. Now divide by b in the numerator and the denominator. A by b plus 1 whole square, a by b minus 1 whole square. This a by b is what? Amplitude ratio, which is denoted by small r. A by b is equal to r, amplitude ratio. So we can write I max by I min is equal to r plus 1 whole square by r minus 1 whole square. This is another very important relation. Conceptual question is being asked on this formula. I max by I min is equal to r plus 1 by r minus 1 whole square. This whole square, this square. Right? Clear? Now come to the next part. Now the next part of the interference is that intensity of the light and width of the source. Now what is that width of the source? This is the two slit and coherent sources are being produced and obtained from the one source only, and here the two slits S1 and S2 slits from which the waves comes out. What is the meaning of the slit width? Here slit width. Slit width means that is denoted by W. Here this is the slit width. This is the slit width. Right? So intensity comes out from this particular aperture, or you can say the slit width is directly proportional to the width of this slit. So the same thing we are talking about this here. I is directly proportional to W. So individual IA by IB is equal to WA by WB. As I is directly proportional to A square, we know this, we know I is directly proportional to A square, amplitude square. So A square by B square, IA is equal to A square and IB is equal to B square. WA by WB. So A by B is equal to under root WA by WB. This is also a very important formula of the interference. The conceptual question is being asked. So always remember, slowly and slowly try to understand. All these are very, very important. Then comes to the another part of the interference, theory of interference or the theory of fringes. Fringes जो मिलता है, कैसा कैसा फ्रिंज मिलता है, ऐसा ऐसा करके फ्रिंज मिलता है. सर्कुलर अगर कोहेरेंट सोर्स है, इस तरह का हम लोग को इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिलता है. इस तरह का यहाँ डार्क, ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, लाइक दैट. फ्रिंजेस, इसे वो क्या बोलते हैं? फ्रिंजेस. Theory of fringes, full geometrical, full mathematical analysis is there. Now just see the diagram. Here the two slits S1, S2, and here the screen I have placed, and this is the from the source S1, S2, equidistance point is O. O is the equidistance point, and here the difference between, or the distance between the two slits are denoted by small d, and the slit here, this is a slit, two slits S1, S2. The distance between the slit and the screen, what is this? Screen is capital D. This we have to remember, capital D and small d. This is a conventional that we are using this particular denotation. Capital D means the distance between slit and the screen, and small d means the distance between the two slits. So this is the equidistance, and from this equidistance, one point we have considered the P, which is at the y distance. This particular distance we have taken y. Now here the waves comes out. यहाँ पर भी, यहाँ से भी वेव निकल रही, यहाँ से भी वेव निकल रही, ऐसे करके इधर सब in all directions the waves comes out. So let us, out of all that infinite number of waves, we are considering the two only. First,
this direct or the equidistance point, the one wave from S1 and another from S2, superimpose here, and second one we have taken S1 is reaching to point P, and from the S2 also reaching to the point P. ऐसे S1 से निकल रहा है और यहाँ पर ये सुपरिम्पोज हो रहा है, ये वेव सुपरिम्पोज हो रहा है। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, तो हमको ये मालूम करना है कि सेंट्रल पॉइंट से, ये स्क्रीन का सेंट्रल पॉइंट से किस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज होगा या डार्क फ्रिंज होगा, उसका थ्योरी। अब यहाँ पर देखेंगे हम पहले क्या पाथ डिफरेंस के टर्म में हम लोग जानते हैं, पहली कंडीशन ब्राइट डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव के केस में पाथ डिफरेंस यहाँ पर ये P पॉइंट पर पाथ डिफरेंस का मतलब क्या होता है, S1P और S2P, ये दोनों के बीच का जो पाथ का डिफरेंस है वही पाथ डिफरेंस। मान लेते हैं कि ये पाथ डिफरेंस डेल एक्स का तो क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P, दिस माइनस दिस, ये पाथ डिफरेंस हम इसको नोट कर लिए। अब राइट एंगल ट्रायंगल हम देखते हैं S2BP, S2BP, ये राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। फुल ज्योमेट्री पाइथागोरस थ्योरम, S2P इज इक्वल टू S2B स्क्वायर, S2P this square plus this square plus this square means this S2B square plus PB square whole to power half, इतना हो गया। अब S2B क्या है, S2B है D और PB क्या है, PB यहाँ से यहाँ, हम देखिए यहाँ से यहाँ तक ये है पूरा y, और ये जो डिस्टेंस है ये इसका हाफ है, D का हाफ, यहाँ से यहाँ क्या D/2, ये वाला भी पार्ट D/2 हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी D/2 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर y प्लस D/2 बाई होल स्क्वायर बाई D स्क्वायर। सिंपल, इसको कॉमन ले लिए, होल टू पर हाफ। अब ये जो एक्सप्रेशन आया इसका बायनॉमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे एंड हायर पावर को नेग्लेक्ट करेंगे। बायनॉमियल थ्योरम तो मालूम ही है, S2P दिस इतना आया, बायनॉमियल थ्योरम से हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसको, तो इसको यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ये हो जाएगा आपका D कॉमन था, ये वाला पार्ट आया था D प्लस, फिर D को हम क्या किए, अंदर कर दिए। ये 2 कहाँ से आया, बायनॉमियल थ्योरम है ना, बायनॉमियल थ्योरम क्या बोलता है, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n इज इक्वल, ये बायनॉमियल थ्योरम है, 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, ये सीरीज़ है, पूरा चलते जाता है। ये सब हायर पावर ऑफ x आ रहा है, तो इसको नेग्लेक्ट कर दिए हैं, केवल यही दोनों को रखें। तो पावर यहाँ n था तो n आ गया है, यहाँ पावर हाफ है तो हाफ आ गया है, ये वाला 2 करने के बाद उसके बाद 2 नीचे आ गया, फिर उसको D से D फिर अंदर कर दिया, तो D प्लस इतना आ गया, इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2, अब राइट एंगल ट्रायंगल S1AP लेंगे, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, S1AP राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पर भी वही S1P स्क्वायर इक्वल टू S1A स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, AP का वैल्यू क्या हो जाएगा, y माइनस D/2, AP का वैल्यू यहाँ पर ये देखिए सेम y माइनस D/2 होल स्क्वायर बाई 2D। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग बायनॉमियल थ्योरम का यूज़ किए हैं, तो यहाँ पर इतना आ गया जैसा पहले आया था। अब ये दोनों पाथ डिफरेंस जो था मेरा, पाथ डिफरेंस क्या था, पाथ डिफरेंस ये S2P माइनस S1P, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर मेरा इतना आ जाएगा y स्मॉल d बाई कैपिटल D, y स्मॉल d बाई कैपिटल D। सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेशन सिंप्लीफाई कर दिए, तो डेल एक्स पाथ डिफरेंस इतना आया। अब ब्राइट फ्रिंज के लिए वो वाला पॉइंट अगर ब्राइट फ्रिंज होता है तो क्या कंडीशन है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैक्सिमा के लिए, तो पाथ डिफरेंस शुड बी n लैम्डा। पाथ डिफरेंस कितना, y d/d n लैम्डा, तो y इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, इतना आया। तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहाँ पर मिलेगा, फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज
सेंट्रल फ्रिंज कौन सा था, ये बीच वाला, यहाँ पर सेंट्रल फ्रिंज बन रहा था। इससे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज हमको कब मिलेगा, जब n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y1 हो गया लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल डी, लैम्डा ये तो 1 हो गया लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल डी इतना। सेकेंड ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या करेंगे, n इक्वल टू y2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल डी, ठीक है। तो अब हमको उस फ्रिंज का विड्थ, कौन सा विड्थ, ये मेरा ब्राइट था, फिर डार्क था, फिर ब्राइट था, फिर डार्क था। तो ब्राइट के कंडीशंस में हमको निकाल रहे हैं, ये ब्राइट था, ये वाला डार्क था, फिर ये ब्राइट था, फिर ये डार्क था, इस तरह का फ्रिंज मिला था। तो ये सेंट्रल पॉइंट था, वहाँ से ऐसे। तो ये दोनों जो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज आया, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये y1 पोजीशन कहाँ से, y1 क्या पोजीशन है, ये वाला पोजीशन, यहाँ से ये वाला पोजीशन। तो दोनों पोजीशन को अगर माइनस कर देंगे तो मेरा फ्रिंज का विड्थ, कौन सा फ्रिंज, डार्क फ्रिंज का विड्थ निकलेगा, ब्राइट का नहीं निकलेगा, डार्क का। तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। फ्रिंज विड्थ को कैपिटल को बीटा से डिनोट करते हैं, लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल डी, डार्क फ्रिंज का। अब डार्क फ्रिंज का कंडीशन, ये तो ब्राइट फ्रिंज के कंडीशन से हम लोग आए तो इतना आया। डार्क फ्रिंज का कंडीशन क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मिनिमा। उसमें पाथ डिफरेंस जो है दैट इज 2n+1 इंटू लैम्डा, मीन्स ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होने से हमको डार्क फ्रिंज मिलता है। तो यहाँ पर भी y इज इक्वल 2n+1 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल डी हो गया, ये कंडीशन निकला। अब यहाँ पर हम लोग n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए, n इज इक्वल 0। फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहाँ पर मिला, इतना लैम्डा कैपिटल D बाई ट्वाइस डी। फिर सेकेंड वाले के लिए n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1। सेकेंड डार्क फ्रिंज y1 इज इक्वल टू 3 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल डी, 3 लैम्डा कैपिटल बाई ट्वाइस डी आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा ना। 1 अगर पुट करेंगे, 1 2 + 1 3, तो यहाँ पर 3 इतना आ जाएगा, 3 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल 2d। सो डार्क फ्रिंज का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए y_d पाथ डिफरेंस शुड बी 2n+1 लैम्डा बाई 2। ये पहले हम लोग कंडीशन निकाल चुके हैं डार्क फ्रिंज के लिए। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाए, 2n+1 लैम्डा कैपिटल D बाई ट्वाइस डी। ये नीचे डिनोमिनेटर में 2 रहता है, 2 आया था हम लोग का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ट्वाइस डी। तो ये कंडीशन आया। अब n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिलेगा, तो 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, लैम्डा कैपिटल D बाई ट्वाइस डी, इतना आ गया। फिर n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 2 + 1 3 बाई 2, 3 बाई 2 लैम्डा D बाई डी इतना, एंड सो ऑन। जितना जो पोजीशन को निकालना निकाल सकते हैं। अब हमको डार्क फ्रिंज तो है, डार्क फ्रिंज फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन। अब ये दोनों का पोजीशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा ब्राइट फ्रिंज का विड्थ निकलेगा। अब ये दोनों को माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो मेरा क्या निकलेगा, फ्रिंज विड्थ निकल जाएगा। ये दोनों को माइनस करिए तो लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल डी आ जाएगा। ये फ्रिंज विड्थ ऑफ क्या हो जाएगा, ब्राइट फ्रिंज। लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल डी, वही सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डार्क फ्रिंज का भी और ब्राइट फ्रिंज का भी दोनों का विड्थ सेम होता है इंटरफेरेंस में। देयर इज द सेम विड्थ फॉर द डार्क फ्रिंज एज वेल एज ब्राइट फ्रिंज। रिमेंबर लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल डी। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, कैपिटल D डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट, and the small d is your distance between the two slits. Beta is equal to lambda capital D by small d. Very very important. Usually several times the question is being asked already in the board exam. Okay, so very simple.
आई एम जस्ट रिकैप्चुलेटिंग थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस. ऐसे किए, पाथ डिफरेंस निकाले, दिस माइनस दिस, पाथ डिफरेंस, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किए, बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ किए, और नेग्लेक्टिंग द हायर पावर, अल्टीमेटली इतना आया. फिर दूसरा वाला राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ किए, पाथ डिफरेंस डेल एक्स इतना आया. अब ब्राइट फ्रिंज का कंडीशन पाथ डिफरेंस के टर्म में वाइट स्मॉल डी बाई कैपिटल डी स्क्वायर एन लैम्डा, वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई क्या है, सेंट्रल पॉइंट से पोजीशन, कौन सा पोजीशन में, वो है सेंट्रल पॉइंट से, तो y इज इक्वल टू इतना. तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज n इज इक्वल टू 1 पुट कर किए तो लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी आया, n इज इक्वल टू 2 पुट किए, y2 आया, दोनों को सेपरेट कर दिए तो फ्रिंज विड्थ तो डार्क फ्रिंज आया लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी. सिमिलरली डार्क फ्रिंज के लिए जो कंडीशन है पाथ डिफरेंस 2n + 1 लैम्डा बाई 2, दैट इज द कंडीशन, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2. तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर इतना हो गया. अब फिर 0 1 2 पुट करेंगे तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज सेकंड डार्क फ्रिंज दोनों को सेपरेट कर देंगे तो यहाँ क्या निकलेगा, थिकनेस और द फ्रिंज विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज, ये दोनों को माइनस कर दिया, दिस माइनस दिस, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, थैंक यू.